السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ 9 مئی کو ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ میں ملوث پی ٹی آئی ورکرز کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پولیس نے پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن خدیجہ شاہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے خدیجہ شاہ کے شوہر جہاں زیب کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ مجاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مجاہد، اپڈیٹ کیجیے گا اس خبر کے حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو میل ورکر ہیں ان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ تو پہلے سے ہی جاری تھا۔ اس کے بعد خواتین کی گرفتاری کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جو ہے پولیس کو اس بات کی ہدایت کی تھی کہ جو خواتین ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اگر گرفتار کیا جائے گا تو ان کے ساتھ خواتین پولیس کا ہونا ضروری ہے۔ تو پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن خدیجہ شاہ کو سی اے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس ذرائع اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جو خدیجہ شاہ ہیں ان کے شوہر جہاں زیب کو جو ہے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ سی اے پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کی متحرک اور سرگرم کارکن جو ہے خدیجہ شاہ اس کو حراست میں لے دیا ہے، اور اس کے شوہر جہاں زیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے جو ہے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ دن پہلے نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکر ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کا استعمال کیا جائے گا۔ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور جو گرفتاری ہوگی خواتین کی ان کے ساتھ گرفتار کرنے کے لیے خاتون پولیس اہلکار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، مجاہد اپڈیٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی رہے گا۔ مدثر نے ہمیں جوائن کیا۔ مدثر، کہیے گا کیا خدیجہ نے ابھی تک کوئی بیان دیا ہے یا ان کی شوہر کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہو؟ ابھی تک خدیجہ کی طرف سے کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن یہ بات جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ضرور سامنے آئی کہ خدیجہ شاہ نے سی اے اقبال ٹاؤن میں خود پیش ہوئی ہے۔ خدیجہ شاہ نے ایس ایس پی سی اے ملک علاقے کے سامنے پیش ہوئی ہے، اور ڈی ایس پی سی اے محمد علی بٹ نے جو باقاعدہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی ہے۔ خاوند کو جو ہے وہ بھی گرفتار جو ہے وہ اس حوالے سے کر لیا گیا ہے۔ ایک دو روز پہلے جو ہے وہ ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ میں جو ہے وہ گرفتاری دینے جا رہی ہوں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ گھر پر چھاپے مار رہی ہے اور ہراساں کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رپوش ہوگی، اور اس نے جو ہے وہ گرفتاری نہیں دی، لیکن آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خدیجہ شاہ نے جو ہے وہ سی اے اقبال ٹاؤن کو اپنی جو ہے گرفتاری دے دی ہے، اور ڈی ایس پی سی اے محمد علی بٹ نے جو ہے باقاعدہ کی گرفتاری ڈال دی ہے، اور ان کے خاوند کی بھی جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ خدیجہ شاہ پر جو ہے وہ جو مقدمات جو دہشت گردی سمیت دیگر جو اتفاق مقدمات درج ہیں ان میں جو ہے اس کو نامزد کیا جائے گا، اور مختلف پہلوؤں پر جو ہے تفتیش کی جائے گی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں خدیجہ شاہ سے جو ہے وہ تفتیش کی جائے گی، جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور اس کا جو جلاؤ گراؤ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جائے گی، اور تفتیش جو ہے وہ اس سلسلے میں کی جائے گی۔ دیگر جو سرپشند عناصر ہیں ان کی بھی گرفتاری کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، اور اب تک جو ہے وہ 500 شرپسند عناصر جو کہ خاص طور پر جو ہے وہ عسکری ٹاور اور جناح ہاؤس میں جلاؤ گراؤ میں ملوث ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور اوور آل جو لاہور سے تقریباً 1900 کے قریب جو ہیں وہ پی ٹی اے کے جو کارکن اور شرپسند عناصر کو جو ہے وہ اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ خدیجہ شاہ بھی ان میں شامل ہیں، جن کو جو ہے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خود انہوں نے جو ہے وہ سی اے اقبال ٹاؤن میں جا کر اپنی جو ہے وہ پیش ہوئی ہیں اور گرفتاری دی ہے، اور ایک دو روز قبل جو ہے ان کا وہ ٹویٹ سامنے آیا تھا کہ میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنی گرفتاری دینے جا رہی ہوں، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی گرفتاری نہیں دی، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ خود جو ہے پیش ہو کر اپنے خاوند کے ساتھ اپنی جو ہے وہ گرفتاری دے دیا، اور سی اے اقبال ٹاؤن نے باقاعدہ ان کی گرفتاری کر بھی لی ہے۔ اور اس حوالے سے سی اے پولیس کا اور لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ جو شرپسند عناصر جنہوں نے عسکری ٹاور کو جلایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جناح ہاؤس کو جلایا ہے، ان پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ ان کی تمام جو شناخت ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، جیو فینسنگ کا جو عمل ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے حوالے سے تمام تصاویر جو ریڈ کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کو دے دی گئی ہیں، جلد ان کو بھی گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، دوسری طرف ہمارے دوسرے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि 25 मई को आम तातीलात का ऐलान किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की गई है, जबकि ट्वीट में ये भी लिखा कि 25 मई को आम तातीलात का ऐलान किया जाए ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुहदा को खराज तहसीन पेश कर सकें। आपको बताएं इस खबर के हवाले से कि 25 मई को आम तातीलात का ऐलान किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की गई है, जबकि ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि 25 मई को आम तातीलात का ऐलान किया जाए ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को शुहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट किया गया है वज़ीर-ए-आज़म को कि 25 मई की छुट्टी दी जाए। यहाँ आपको बताएं कि 24 मई रात 9 से 25 मई दोपहर 12 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी, जबकि पुराने रावी पुल पर तरक्याती काम के बायस हुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया है। रावी रोड, भगतपुरा, कोट ख्वाजा सईद, चाइना स्कीम समेत दीगर इलाकों में गैस बंद रहेगी। आपको बताएं कि 24 मई रात 9 से 25 मई दोपहर 12 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। इसी पर बात कर लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुराने रावी पुल पर तरक्याती कामों की मद में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 मई रात 9 बजे से 25 मई दोपहर 12 बजे तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने 15 घंटे तक गैस बंदिश का शेड्यूल जारी किया गया है। इस हवाले से जो इलाके से जो है वहाँ पर आ रहे हैं, इनमें रावी रोड, बदामी बाग, दाता नगर, सदाकत पार्क, कोकर रोड, मलक पार, एहतसाबपुरा में गैस जो है वो बंद रहेगी। इस तरह हबीब पार्क, हबीबगंज, उस्मानगंज, आमर रोड, बम्बे चुकियाँ, अफजल पार्क, अफजल टाउन, न्यू शादबाग, भगतपुरा, कोट ख्वाजा सहित चाइना स्कीम, गुजरपुरा, महमूदपुटी, लखोडेर, शादीपुरा, मोमनपुरा, दरोगा वाला में जो है वो गैस बंद रहेगी। इसी तरह नसीराबाद, बिलाल कॉलोनी, गोगीवाल और मुलक्का इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया का कहना है कि सार्फिन जो है वो अपने गैस आलात और चूल्हे जो है वो इस दौरान मुकम्मल तौर पर बंद रखे ताकि किसी भी किस्म के जो है वो हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। फ़हद, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेस्को बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन के इलाका में फर्नेस मिल बिजली चोरी में मुलव्वस निकली है, जबकि मिल मालकान सॉफ्टवेयर के जरिए मीटर को स्लो करके बिजली चोरी कर रहे थे। लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और ट्रांसफार्मर कब्जे में ले लिया है। तफसीलात क्या है, फ़हद अमीन से ही जानेंगे। फ़हद, क्या मामला था ये? आज बिल्कुल ये लेस्को बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन के इलाके में आज जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कार्रवाई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल मोहम्मद अनवर भट्टू की जेर निगरानी की गई है। बिलाल कॉलोनी के इलाका से फर्नेस मिल से बड़े पैमाने में जो है बिजली चोरी पकड़ी गई है। फर्नेस मिल मालकान सॉफ्टवेयर के जरिए मीटर को जो है वो स्लो करके बिजली चोरी कर रहे थे। एक्टिंग शालीमार, आमर नवाज और एसडीओ बिलाल कॉलोनी ने टीम के हमरा ये कार्रवाई किया। लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और ट्रांसफार्मर जो है वो कब्जा में ले लिए है। एससी ईस्टर्न सर्कल चौधरी मोहम्मद अनवर भट्टू का कहना था कि लेस्को चीफ की हिदायत पर ये कार्रवाई की गई है और बिजली चोरी में मुलव्वस मिल मालकान के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। बिजली चोरी का तखमीना लगाकर इन्हें डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लेस्को की बिजली की तलब 4800 मेगावाट से तजावज़ कर चुकी है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 4050 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि लेस्को को 750 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज़्यादा होने के बायस शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग के साथ सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर्स के जलने की शिकायत भी आने लग गई हैं। हाजी कैंप में तजावज़ात की भरमार है। तजावज़ात के बायस पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना है। तजावज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मुबीन हैदर हमारे साथ हैं। मुबीन, कहिएगा क्या मुश्किलात हैं? हम लोग जो है हाजी कैंप के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है लंडे की वजह से जो है सड़क पे जो बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नाजायज़ तजावुज़ात बना ली गई हैं। लंडे वालों ने दुकानों से कम 100 फुट दूर तक जो है नाजायज़ तजावुज़ात बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि लंडे की हदूद जहाँ तक मुख्तस की गई हैं उसे 100 फुट आगे तक जो है ठेले लगा लिए गए हैं, रेडियाँ लगा ली गई हैं, स्टॉल्स लगा लिए गए हैं। इसका मसला जो है आम शहरियों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक है तो बार बार दबाव का शिकार हो जाती है। आधे से ज़्यादा सड़क जो है नाजायज़ तजावुज़ात की नज़र दिखाई देती है यहाँ पर।
नजायज़ तजावुज़ात की मद में जो है जद में आधे से ज़्यादा सड़क जो है आ जाती है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंक्रोचमेंट वाले कहते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं कि यहाँ पे लंडे के हदूद हैं उनके उसकी जो है प्रॉपर उस पर अमल दरामद कराया जाए, लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि यहाँ पर दुकानदार है जो लंडा माफिया है, लंडा माफिया ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर नजायज़ तजावुज़ात को हटाने नहीं दिया जाता, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक बार बार दबाव का शिकार हो जाती है और जहाँ पर आम राहगीर शहरी गुजरते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि रोड इस हद तक आधे से ज़्यादा सड़क जो है नजायज़ तजावुज़ात की जद में आ चुकी है। स्टॉल्स लगा लिए गए हैं, इसके अलावा लंडे के स्टॉल्स थे, उसके साथ साथ बाकी हमें खाने पीने के स्टॉल्स भी बीच में दिखाई देते हैं क्योंकि जब एक स्टॉल लगता है तो उसको देखा देखी दूसरे लोग यहाँ पर स्टॉल लगा लेते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक बार बार दबाव का शिकार हो जाती है, शहरियों को गुजरते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है, आमद रफ्त जो है मुतासर होती है। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और जल्द अज जल्द कोई हल निकाला जाएगा ताकि इस जगह का जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए क्योंकि अहम शाहरा है, अहम सड़क है, यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी अच्छा खासा होता है और लंडे के नजायज़ तजावुज़ात की वजह से जो है लोगों को यहाँ पर आमद रफ्त में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी मुबीन साथ, बहुत शुक्रिया मुबीन अपडेट करने का। दूसरी तरफ आपको बताया कि मुकामी होटल में न्यूरोपैथी इन डायबिटीज़ के उन्वान पर तकरीब का इनेकाद हुआ। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की सिम्पोजी में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में डॉक्टर जावेद अकरम का यह कहना था कि शुगर की बीमारी पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रही है, आगाही फैलाना इंतहाई अहम हो चुका है। तफसीलात सजाद से जानेंगे। सजाद हुसैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ने खिताब करते हुए कहा कि इंतहाई अहम मौजू पर सिम्पोजियम का इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शुगर की बीमारी पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रही है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और अवाम में शुगर के हवाले से आगाही बनाना इंतहाई अहम हो चुका है। शुगर की बीमारी एक खामोश कातिल है। उन्होंने कहा कि हमें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सेहतमंद लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक अवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना होगी। उन्होंने कहा कि शुगर की बीमारी से बचने के लिए सुबह की सैर को जो है वो मामूल का हिस्सा बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। जौहर टाउन के इलाका में खंभे ख़राब होने से बिजली के तार ज़मीन के करीब आ चुके हैं। बिजली के लटकते तारों से हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार दरख्वास्त के बाद सुनवाई नहीं हो रही। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शाहजेब से जानेंगे। शाहजेब शहजाद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन के इलाके शादी खुई धना सिंह वाला में, जहाँ पे बिजली की तारों के गुच्छे ज़मीन से इस कदर करीब हैं कि बच्चे भी हाथ लगाएं और वो जो अफसोसनाक वाक़े का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो बिजली के खंभों की हालात है वो भी आपको मेरे कैमरामैन दिखाते हैं कि जो खंभे हैं वो किस हद तक खाकस्तर हो चुके हैं। लगता है यहाँ पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद ये टेढ़ा हो गया और उसके पास जो 11 kV की बिजली की बड़ी तारें हैं वो भी ज़मीन के करीब आ चुकी हैं और घरों की टेरेस के साथ जो है वो टच होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे इलाका मकीन से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताएं कि आपने लेस्को से रब्ता किया है और उनको बताया क्या सूरत हाल है यहाँ पे? मैंने 1 साल हो गया, 1 साल पहले एप्लीकेशन दी है, फाइल पूरी बना के तस्वीरें उतार के सारी वीडियो साथ लगा के SDO ने साइन किए हैं। पताड़ी वाला SDO उसने साइन किए हैं। मैं और ये रफाकत दोनों जमा करा के हैं। जब भी हम जाते हैं तो कहता है बस ये मटीरियल होने वाला आ जाता तो कर देने मटीरियल। 1 साल हो गया, शिकायत दर्ज करवाई गई, दाद रसी नहीं हुई। आप मुझे बताएं कि कैसे अफसोसनाक भी यहाँ पे वाक़ये पेश आ चुके हैं। इधर बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। बड़ी गाड़ियाँ आती हैं वो टच हो जाती हैं, उसके बाद बिजली चली जाती है, 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। हम उधर दरखास्त देते हैं तो उसमें भी सुनाई नहीं होती। 2 दिन बाद आते हैं, बिजली चालू करके फिर चले जाते हैं। लेस्को की तारों का निज़ाम पूरे तरीके से दरहम बरहम है और अफसोसनाक वाक़ये भी पेश आते रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं? छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो खेलते हैं, तो यकीनी तौर पे वो कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या तो नहीं पेश आ गया कि उन्होंने हाथ लगा दी हो इन बिजली की तारों को? ये तो बहुत दफ़ा हो चुका है। पहले तो इधर मवेशी होते थे, वो खंभों के साथ लगते थे, मर जाते थे। अब तो मवेशी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब गांव वाले जो है ना बड़ी गाड़ी नहीं इधर आ सकते, ना कोई मकान बना सकता है, ना कोई सामान अपना लेके आ सकता है। खंभों के साथ टच होती है, तारों के साथ टच होती है गाड़ियाँ,
वो आग लग जाती है, सामान को भी आग लगती है, सामान जल जाता है, गरीब आदमी का सामान कहाँ से बनता है। जी बिल्कुल, बहुत बार यहाँ पे आतिशज़दगी के वाक़े भी हो चुके हैं। मवेशी जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इन तारों के साथ टकरा के, और यही सूरत हाल जो है वो कई सालों से दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक लेस्को या वापडा की जानिब से इनके साथ कोई दाद रसी नहीं की गई, और इसीलिए इन इलाका मकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ आपको बताएं, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड बंद न करने का फैसला किया। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए इदारों को मजबूत करना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जनरल हस्पताल आमद। वजीर सेहत ने जनरल हस्पताल में एकेडमिक काउंसिल के इजलास की सदारत की। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद के एजाज में तकरीब का एहतमाम भी किया गया। डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में बच्चों के इलाज के लिए 40 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि जनरल अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। पंजाब की तिब्बी दरसगाहों में क्वालिटी रिसर्च पर खास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए इदारों को मजबूत करना होगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तकरीबन 1.5 लाख लोग इधर एक दिन में विज़िट करते हैं। उसकी वजह से बेइंतहा ओवर क्राउडिंग है, बेइंतहा ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं। हम ये पार्किंग आउटसोर्स करेंगे, हम अपनी कोर जो बिजनेसेस हैं उस पर कंसंट्रेट करेंगे। हम और हमारे बच्चे जो हैं, जो इधर ट्रेनीज़ हैं, हम सिर्फ मरीज़ की खिदमत के लिए हैं और मरीज़ के लिए हमारी जान भी हाजिर होगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कुछ रोज़ कबल PKLI में होने वाले इजलास के दौरान सेहत कार्ड बंद न करने का फैसला किया है।